What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915D. Today is Thursday, 26th of Feb, and today was Sensex monthly expiry. Sensex opened a little bit of a gap up, somewhere around 82,600 levels, and within the first 1 hour, the market was extremely volatile in a small range. Market ज़्यादा move नहीं किया. Within 300 points, the markets hit both the floor and the ceiling multiple times within the first 1.5 hours, with straddle not actually giving up value. So this reminded me of those days when Jane Street was active in the Indian markets. उस time पे भी similar kind of price action होता था. The markets used to not move much in delta terms, but in a small range, the market used to chop left, right and center. And in this period, the straddle used to actually spike. And कल straddle almost 500 के आसपास close हुआ था, and today it opened at 360, almost 140 points का overnight crush देखने को मिला. And as I had mentioned in the yesterday's video, अगर 400 या 400 के नीचे अगर straddle खुलता है तो first pick short gamma trades are a clear no. तो उसके बाद as the market started chopping both the directions, the straddle actually spiked to 440, and वहाँ से straddle started actually cooling off. And throughout the day, the markets were quite volatile. ज़्यादा range में markets move नहीं हो रहे थे, छोटे range में move हो रहे थे, but the candles on a lower time frame were quite ferocious. And even towards the end of the day, the markets did a sharp U-turn, almost 350-400 points का एक up spike देखने को मिला. And इस scenario को भी हमने exactly discuss किए थे कल के वीडियो में. So let me know in the comments अगर कल के analysis आपके trading में कुछ help हुआ रहेगा तो. So Monday is Nifty's weekly expiry because Tuesday is a holiday. That makes tomorrow's trading day as Nifty's 1DT. So let's get to the terminal and let's see कल के लिए क्या trade opportunities हम spot कर सकते हैं. So all right, daily chart पे there was not much happening, and today the markets ended exactly where they ended yesterday. And जैसे markets इस range को shift करेगा either on the downside or on the upside, then probably we'll discuss what should be the future course of action. And lower time frame पे बात करें तो we had exactly discussed this कि मैंने क्लियरली बताया था कि आज एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी होने का जो प्रोबेबिलिटी है काफ़ी कम है, एंड आज मोस्ट प्रोबेबली बेयर ट्रैप की सिनेरियो ज़्यादा होने वाला है. तो आई इवन टोल्ड दैट यहाँ पे एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स आप ढूंढो, एंड द मार्केट्स यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे टच पॉइंट करके द मार्केट्स एक्चुअली शॉट अप ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स. तो यहाँ पे 82,000 लेवल से आसपास ऑलमोस्ट 80 to 400 तक ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का एक स्पाइक देखने को मिला. एंड थ्रू आउट द डे द मार्केट्स वर क्वाइट वोलेटाइल. अगर आप देखते हैं तो दीज कैंडल्स which happened in this first 1.5 hours, they were really freaky, काफ़ी scary kind of candles थे, because हर 5 मिनट पे markets almost 200 पॉइंट का एक कैंडल प्रिंट कर रहा था, and that too not on a single side but on the both sides, because दोनों तरफ markets दोनों traders को, call writers को, put writers को, even buyers को भी continuously chop कर रहा था. You can notice that the markets hit this floor 1, 2, 3 and 4 times, and the markets hit the ceiling 1, 2, 3 and 4 times. तो imagine करो, this is a 300 point range, so market moving 300 point डाउनसाइड, 300 अपसाइड, 300 डाउनसाइड, 300 अपसाइड, ऐसे 4 बार किया है. सो विच मेक्स ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट का स्विंग हियर इटसेल्फ. सो अनलेस समबडी एक्चुअली कुड होल्ड ऑन टू दिस पर्टिकुलर 80 to 400 पे स्ट्रैडल होल्ड करके बैठ सकते हैं विथ palpating all sorts of mark to market swings, of course there would be a lot of delta cost, because during this time there was not much crush in the straddle pricing as well. तो अगर आप देखते हैं तो like the straddle opened at almost 360 levels, and जैसे market थोड़ा volatility दिखाना चालू किया, there was some amount of repricing, and almost straddle 440 के आसपास spike हो गया था. तो if somebody actually entered the straddles right at the open, they would have gone through a lot of pain, because not only they were paying a lot of delta costs, but at the same time they were paying a lot of the IB costs as well. After that also it was not a clear cut day, because यहाँ आप देख सकते हैं कि मल्टीपल स्पाइक्स हमको देखने को मिले, एंड पोस्ट 2 PM also there was a huge amount of volatility. आप देखते हैं तो even these candles are almost 200 point का candles. When the straddle itself was trading at 100 rupees, the market was spiking these 50 rupee का calls to 150, 200, and then again spiking the puts to 100 and 150. So at this point post 2 PM का जो gamma है, it is kind of a given. Starting these buying strategies probably 2 o'clock के बाद या 2:30 के बाद, I would say the expected value of option buying or long gamma systems is much higher than actually trading short gamma systems. So tomorrow is Nifty's 1DT. Let me go to the Nifty straddle chart, because Monday के दिन जो है Nifty का weekly expiry है, because Tuesday is a market holiday. तो आप देख सकते हैं कि straddle is trading at somewhere around 235. So most probably कल 200 के आसपास straddle खुलने वाला है. But again
considering the fact that we are susceptible to a lot of global news flow and we are going into a weekend, and right after the weekend we have a nifty expiry. अगर आपको याद है तो just 2 or 3 weeks back nifty opened with a massive gap on the day of the expiry. So कल के दिन जो है हम लोग स्ट्रैडल कहाँ पे एंड होने वाला है, कितना हम लोगों को क्रश मिलने वाला है, ये प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है. सो आई एम नॉट गेट इन टू द बिजनेस ऑफ प्रेडिक्टिंग वेयर द स्ट्रैडल इज गोना एंड. इफ यू आर लकी देन देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ probably 30 to 40 points of crash, because I'm not seeing any reason where the straddle should be trading below 160 tomorrow. Because last expiry के दिन निफ्टी का 1DT जो ट्रेड कर रहा था मंथली एक्सपायरी के पहले वाला दिन, that ended at somewhere around 160 points. So considering the fact that we are going into the weekend and the memories of the wounds are pretty fresh, where the Nifty gapped up with a huge gap up on the expiry day itself, I would say that the straddle should be pricing anywhere around 180 levels. तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है विदाउट एनी ओवरनाइट क्रश, देन प्रॉब्ली 230 से लेके 180 तक एक 50 पॉइंट का क्रश एक्सपेक्ट कर सकता है. नाउ विथ एवरी 10 पॉइंट ड्रॉप इन द स्ट्रैडल ओवरनाइट, अगर मान लो कि कल अगर 220 पे अगर खुलता है, देन मेरे लिए पोटेंशियल क्रश जो हो जाता है सिर्फ 40 पॉइंट्स. अगर मान लो कल 200 के आसपास खुल जाता है, देन practically the day becomes untradable tomorrow. If the straddle opens at 230, then probably अगर कोई short wall trade करना चाहता है, then probably थोड़ा बहुत एक छोटा साइज से ट्रेड कर सकता है, बट एनीथिंग बिलो 215 वुड मेक इट वेरी अनअट्रैक्टिव टू ट्रेड शॉर्ट वॉल ट्रेड्स टुमारो. तो अगर प्राइस एक्शन बेस्ड अगर ट्रेड्स की बात करें तो देन येस, अगेन वी हैव सम अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑन द प्राइस एक्शन ट्रेड्स. अगर मैं देखूं तो येस, ये जो हाई है, आज का जो हाई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स लिक्विडिटी को अब्जॉर्ब करके मार्केट्स नीचे गया है. तो अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है, दैट इज 25,500 के नीचे खुल के लेट्स से 25,600 के आसपास आता है, दैट इज द मार्केट हैज टू ट्रैवल एटलीस्ट 100 पॉइंट्स ऑन एन इंट्राडे बेसिस. मिनिमम 100 पॉइंट्स ट्रैवल करना चाहिए. तो देन आई वुड इनिशिएट अ शॉर्ट ट्रेड समवेयर अराउंड 25,600 लेवल्स. मैं यहाँ पे मैं इनिशिएट नहीं करूंगा, बिकॉज अगर मार्केट फिर से यहाँ पे आएगा, देन मोस्ट लाइकली यहाँ पे जो ट्रेडर्स जो इस लेवल को यूज करके जो शॉर्ट इन पोजिशन इनिशिएट करेंगे, उनका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए 20-30 पॉइंट्स ऊपर जाने वाला है. तो इफ मार्केट कम्स टू 25,600 लेवल्स, देन मेरे लिए जस्ट एक 50 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड प्रपोजिशन बन सकता है. एक 1:2 काइंड ऑफ अ ट्रेड्स में यहाँ पे प्लान कर सकता हूँ, दैट टू आफ्टर कंफर्मिंग ऑन द लोअर टाइम फ्रेम एम पैटर्न, इधर एम पैटर्न या डबल टॉप पैटर्न या लिक्विडिटी स्वीप ऑन द ऑप्शन चेन. बट वो देख के हम लोगों को यहाँ पे एक मीन रिवर्शन ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, दैट इज अराउंड 25,600 लेवल्स. बट अगर हम लोगों को इनिशिएट करना है मीन रिवर्शन ट्रेड ऑन द लोअर एंड, देन आई वुड से डोंट इनिशिएट अराउंड दीज लेवल्स, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक वाइड बैंड नजर आ रहा है. इट्स नॉट लाइक अ पर्टिकुलर प्राइस एक्शन पॉइंट, बट इट्स अ प्राइस एक्शन बैंड. तो यहाँ पे आपका थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड जो है, डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू एंटर, वो कंप्लीटली आपके अगेंस्ट जाने का चांसेस रहता है. बिकॉज आप यहाँ पे थोड़ा जल्दबाजी में यहाँ पे इनिशिएट करोगे, देन मार्केट्स हो सकता है कि एक 50 पॉइंट्स यहाँ पे नीचे जाके यहाँ पे चॉप करके मार्केट्स ऊपर आ सकता है. तो आई वुड अवॉइड द ट्रेड इन दिस रीजन. ये रीजन में मेरा जो है इट्स अ नो ट्रेड जोन. बट इफ अट ऑल मार्केट कम्स टू दिस लेवल, 25,300 लेवल्स के आसपास आता है, देन अराउंड 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज करके हम लोग एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं. एंड आई वुड लाइक टू इनिशिएट दिस लॉन्ग ट्रेड इवन ऑन अ पोजिशनल बेसिस. बट ऑफ कोर्स पोजिशनल इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस वीडियो, सो उसके बारे में ज्यादा हम लोग बात नहीं करना चाहिए. एंड ऑल्सो पोजिशनल ट्रेड्स का जो मैनेजमेंट है वो कंप्लीटली अलग हो जाता है. तो कल के लिए सिर्फ 2 ही ट्रेड्स करेंगे, सिर्फ मीन रिवर्शन ट्रेड्स करेंगे. ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड्स को थोड़ा अवॉइड करेंगे, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेड्स को थोड़ा अवॉइड करेंगे. अगर ब्रेकआउट मिलता है, अगर आपका स्टॉप लॉस होता है जाता है, अगर ब्रेकडाउन मिलता है और आपका स्टॉप लॉस उड़ जाता है, इट्स कंप्लीटली ओके. ट्रेडिंग साइज, पोजीशन साइज जो है 25% ही रखो, सो दैट अगर कल आपका स्टॉप लॉस भी उड़ेगा तो देन यू वुड नॉट बी लूजिंग मच ऑफ योर अर्न्ड प्रॉफिट्स. ऑलराइट, सो कल के लिए ये जो लो है यहाँ पे एक मीन रिवर्शन ट्रेड, एंड ये जो 25,600 लेवल है यहाँ पे एक मीन रिवर्शन ट्रेड. डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ टेकिंग द मीन रिवर्शन ट्रेड्स हियर. अगर मार्केट इसी लेवल को रेस्पेक्ट करके वापस आता है, आने दो, बिकॉज यहाँ पे आप ट्रेड लेते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है, लॉजिकल स्टॉप लॉस है, यहाँ पे रहना चाहिए. तो बेसिकली आपका स्टॉप लॉस जो बन जाएगा ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स, एंड आपको खाने के लिए भी जो मिलने वाला है समवेयर अराउंड 80 पॉइंट्स. जो रिस्क रिवॉर्ड है आपका फेवर में नहीं बैठता. तो आईड वेट फॉर द मार्केट्स टू कम टू 25,600 लेवल्स. जब 25,600 पे आता है मार्केट्स, देन आईड गेट अ लॉजिकल स्टॉप लॉस लेवल एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दिस आईड नॉट गो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड. यहाँ पे मतलब
मतलब मैं ब्रेकआउट के लिए मैं प्लान नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज टुमारो इज फ्राइडे एंड जनरली फ्राइडे टू 1 o'clock के बाद एक रिवर्सल, शार्प रिवर्सल का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होता है, राइट? तो I would try to fade the moose and not go in the direction of the trend tomorrow because tomorrow is a Friday. ठीक है? अगर सेम चीज अगर मुझे मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन अगर मुझे ट्रेड करना है, I would have asked you, अगर मार्केट इस हाई को तोड़ के 10 o'clock के पहले जाता है, I would have asked you to go in the direction of the trend. एक ट्रेंड फॉलोइंग या ब्रेकआउट काइंड ऑफ अ ट्रेड आपको लेने के लिए मैं सजेस्ट करता, बट टुमारो इज फ्राइडे सो आई वुड नॉट सजेस्ट यू दैट. ऑलराइट, ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स आपका जो एक्सपायरी आज कैसा रहा. आई मैनेज टू क्लोज इन ग्रीन अराउंड 0.25% ग्रीन पे मैंने क्लोज किया हूँ. एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स आपका एक्सपायरी कैसा रहा. आई विल सी यू अगेन आफ्टर टुमारोज मार्केट एक्शन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.